Namaskar, IAS aspirants, YouTube viewers, podcast listeners. We are continuing with ethics problems which are equally important for interviews which are going to be held in July for 2020 for the exam last year. So we are taking up ethics GS 4 paper of 2017 क्वेश्चन नंबर 11 20 मार्च का 250 वर्ड्स का. You are head of the human resource department of an organization. One day one of the workers died on duty. His family was demanding compensation. However, the company denied compensation because it was found that during investigation that he was drunk during the duty and at the time of accident. The workers of the company went on strike demanding compensation for the family of the deceased. The chairman of the management has asked you to give recommendation. What recommendation would you provide to the management? Discuss the merits and demerits of each of the recommendation. तो आपने रिकमेंडेशन देनी है, उसकी मेरिट देनी है, डिमेरिट. पहला रिकमेंडेशन क्या देंगे आप? पहला ये कि ड्यूटी पर शराब पिया हुआ था, नो कंपनसेशन. वेरी गुड, बट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? तो आई हैव फॉलोइंग options. Number one, refuse to give compensation as company decided because he was drunk on duty and it was his fault, not company's fault. Number two option, give compensation to the family whether he was drunk or not drunk because people have gone on strike. Third thing, out of the box thinking recommendation. That I will come to later on. Third option मैं बाद में बताता हूँ. पहला ऑप्शन रिफ्यूज, नो, नॉट एक्सेप्टेबल. अपनी मेरिट्स क्या है इसकी? पीपल हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एडवर्स हो गया, एंड एक माहौल है उसको वापस लाने के लिए वो होगा. तीसरा, आपने अपने आप क्या सुपरविजन रखा कि शराब पिए हुआ आदमी काम कैसे कर रहा है. तो शॉप फ्लोर पे इज एनीबडी वर्किंग एज अ सुपरवाइजर टू चेक कि वेदर समबडी इज ड्रंक और नॉट. All these things will come. You will be flooded with so many questions. No, this is not recommended. Option 2, give compensation. Then company will think what type of officer you are. You have not examined. Simply you are having sympathy with family of such an employee, because family should also see that his bad earner should not drink. Why are they lying? So compensation will create bad precedent. So I will write that this may be a good option, but it will create bad precedent that we are giving compensation by closing the eye. Third option out of box. This option is very good. You can recommend that employee has died, there is a one vacancy. You give alternative or compassionate appointment to one of the family members on the बेसिस और रिकमेंडेशन ऑफ वाइफ, स्पाउस. बेटा है तो बेटी को जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि वो शादी अगर होकर चली जाए दूसरे, फिर वो आपको पे नहीं करेंगे, तो आपकी फैमिली फिर. तो ये कई चीज़ें आती हैं. अब इसमें मेरा अपना ही मानना है, जनरली रिकमेंडेशन यही मैंने देखी कि भाई नौकरी दे दो, ख़त्म. नो, आई विल गो वन स्टेप फर्दर आउट ऑफ बॉक्स कि उसको नौकरी भी दो और company should also share some compensation. But a good idea is to ask the striking employees also to contribute per person, per employee some amount, so that they should also feel the responsibility. Going on strike is not the solution. Every time, even if it is drunk, you are striking. So you also share. So you will give matching money. If you collect 2 lakh rupees, company will give 2 lakh rupees. It is a very good. It will create good atmosphere in industrial relations. It will create a atmosphere of more productivity. Also suggest measures कि regulation should be broad, कि you should have जैसे पुलिस वालों के पास होता है, पता लगा लेते हैं कि शराब पिए हुए नहीं, वो मशीन होनी चाहिए, सबका चेक होना चाहिए,
कुछ शॉप फ्लोर पे शराब पीकर नहीं है, कुछ डिसिप्लिन के वो होने चाहिए कि ही शुड लुक आफ्टर फैमिली वेल एंड ऑल दैट। दीज आर द थिंग विच यू कैन राइट इन 250 वर्ड। तो आप इतना मटेरियल आपके पास लिख सकते हैं। अब एक और मैं आपके सामने ले रहा हूँ जिसमें आया था क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस। मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा आपको, लेकिन आपको कम से कम वर्ड्स में लिखना है। तो सेक्शन ए में है ये 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक तो है ट्रांसपेरेंसी, सेकंड है अकाउंटेबिलिटी, थर्ड है फेयरनेस एंड जस्टिस, फोर्थ है करेज ऑफ कन्विक्शन और लास्ट है स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो आपने इसमें मुश्किल से 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि इफ यू सिविल सर्विस के सापेक्ष परिपेक्ष में, तो उसमें क्या है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कीप द पॉलिसी ओपन, लेट इट बी participants, public stakeholders should be participants, they should share the information, or not acting in a way that society should stop thinking about the citizen। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जनता को पता होना चाहिए कि उनको कौन रूल कर रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। जस्ट शुड नॉट ओनली बी ट्रांसपेरेंट बट शुड अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट। एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाली बात है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो आरटीआई एक्ट है, एक मीडिया ट्रायल होते हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका देखें। तो ट्रांसपेरेंसी में ये आपको लिखना है कि नाउ मीडिया ट्रायल, आरटीआई हैव कम इनटू पिक्चर, सो वन शुड एक्सरसाइज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, dissemination of information, display of information, that shows citizenship charter is another good point for transparency। Second point है accountability। accountability बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक सोशल ऑडिट वर्ड है जो ये शो करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए कि नहीं। आपने कर दिया एक बिल्कुल हारा हुआ केस, आपको वकील ने कह दिया साहब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, गवर्नमेंट विल लूज दिस केस, नो वी विल, क्योंकि आपने कोई ईगो का सवाल है कि मेरा डिसीजन है तो हम केस क्यों बंद करें, गलती क्यों मान, हाई कोर्ट में रिट या केस फाइल कर दिया, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, आर यू नॉट अकाउंटेबल, यू आर स्पॉइलिंग मनी एंड टाइम ऑफ योर डिपार्टमेंट। तो ऑल दीज थिंग्स आर, तो इट ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिवनेस, इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी, एफिकेसी, ऑल दीज थिंग्स इट ब्रिंग्स। तो अकाउंटेबिलिटी में आप देख सकते हैं कि इसमें एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, हाउ इट हेल्प्स द डेमोक्रेसी, सिटीजन एंड ऑल दीज थिंग्स। तीसरा है फेयरनेस एंड जस्टिस। तो एक कहावत है, आपने प्रेमचंद का पंच परमेश्वर का पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर का पढ़ा होगा कि जब वो जस्टिस बना दिया उसको, तो उसने न्याय किया अपने ही फ्रेंड से जिससे वो बदला चुका सकता था। उसको मन में यह आया कि नाउ आई एम जज, तो आई शुड वर्क एज फेयर। तो एक दूसरा ये है कि जस्टिस करने में शुड नॉट ओनली डू जस्टिस बट शुड अपीयर टू बी डिस्पोजिंग ऑफ द जस्टिस। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि सोशल जस्टिस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जॉब जस्टिस का कैसे उसको अपने लाइफ में, अपने कैरियर में वे ऑफ लाइफ बनाएं। कि जैसे रूल ऑफ लॉ है, नेचुरल जस्टिस है, इट शुड बी वे ऑफ योर फंक्शनिंग। एक है करेज ऑफ कन्विक्शन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपके जितने साथी चाहे आईआईटी में है, चाहे यूनिवर्सिटी में, कहीं भी थे, उनसे आप डिफरेंट हैं एंड यू शुड फील इलेटेड कि आई एम सिविल सर्वेंट, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ सिटीजन, सोसाइटी। इसका ध्यान मुझे रखना है, मुझे दूसरों के लिए काम करना है। अब आप आईटी एक्सपर्ट बनिए सिविल सर्वेंट के बजाय, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनिए, कोई
बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ऊपर जाते हैं, बट सिविल सर्वेंट है हु इज सपोज टू बी लीडर, हु इज सपोज टू हैव हाई emotional intelligence so that he can control his own emotions, can take charge in the situations like disaster, earthquake, riots. तो उसमें you have to show courage, courage of conviction, dedication, commitment toward duty, and you have to lead by example. So these are the qualities in a civil servant. Okay, why there should be courage of conviction, what are the advantage of it, what is the result of this, who is benefited by, society is benefited, and last is spirit of service. We do everything. अभी देख रहे थे ना कि चाइना की लड़ाई में जो गलवान में हुआ कि जवान जो था हमारा इंडियन वो बहुत लगातार बड़ा मोटिवेटेड था, जबकि कह रहे थे कि चीनी जो है उतने मोटिवेटेड नहीं, क्योंकि जबरदस्ती उनको लड़ाई में भेजा जाता है. दिस इज स्पिरिट ऑफ सर्विस कि लड़ना है उन्हें भी, लड़ना जवान को भी है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप स्पिरिट यू शुड डू विद डेडिकेशन, ट्रू स्पिरिट. ये नहीं अरे भैया काम तो करना ही है, नौकरी करनी है. नो, एज ए सिविल सर्वेंट यू हैव टू शो बाय डेमोन्स्ट्रेशन, बाय एग्जाम्पल, you have to lead, you have to give way. Okay, yes, how you can lead, how you can motivate, how you can handle the situation. This is the spirit of service. कि true spirit जितने भी एक्ट हैं हर एक में लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं अपनी जान बचानी है. ये भी पैरालिसिस ऑफ पॉलिसी ये बहुत आया है. इसमें ना तो अकाउंटेबिलिटी रहती है, ना जस्टिस रहता है, आप खर्चा करते रहते हैं, अपने एंटाइटलमेंट ढूंढते रहते हैं, जनता का एंटाइटलमेंट ढूंढते हैं. स्पिरिट ऑफ सर्विस यही है कि यू आर सर्वेंट, यू आर नॉट एन ऑफिसर, प्लीज फॉरगेट दैट यू आर एन ऑफिसर. तो दीज आर द थिंग. इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं है, लेकिन नाप तोल के लिखना है, अच्छे वर्ड्स लिखने हैं. थैंक यू वेरी मच.